की सहूलत और नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए हुकूमत कई महकमे और इदारे कायम करती है। सन 1904 में ज़िले सदर मकाम हासिल करने वाला ये शहर 90 साल तक लालपुर के नाम से मंसूब रहा और फिर सन 1977 में सऊदी अरब के शाह फैसल शहीद की इस्लामी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर लालपुर को फैसलाबाद का नाम दे दिया गया। इब्तदाई दौर में ये मुल्तान डिवीज़न का एक ज़िला रहा और बाद में सरगोदा डिवीज़न में शामिल रहा। सन 1982 में फैसलाबाद को डिविजनल हेडक्वार्टर का दर्जा दे दिया गया। कमिश्नर ऑफिस और ज़िला कचहरी की इमारतें जदीद और कदीम तर्ज तामीर का हसीन इम्तजाज हैं, जो कि न सिर्फ शहर के हुस्न को दुबाला करती हैं बल्कि तारीख़ी हवाले से भी अहम तसव्वुर की जाती हैं। नाज़रीन, आइए हम आपको फैसलाबाद में मौजूद इंतज़ामी और दीगर महकमा जात की मालूमाती रिपोर्ट दिखाते हैं। इकबाल स्टेडियम के पहलू में फैसलाबाद डिवीज़न का खूबसूरत वसी व अरीज़ कमिश्नर ऑफिस इस शहर की वुसअत और तरक्की का अक्स पेश करता है। सन 1982 में फैसलाबाद को डिविजनल हेडक्वार्टर का दर्जा मिला। जनाब जावेद अहमद कुरैशी इस डिवीज़न के पहले कमिश्नर मुकर्रर हुए। जदीद और कदीम तर्ज तामीर पर मुश्तमिल कमिश्नर ऑफिस शहर की काबिल दीद और दिलकश इमारतों में शुमार किया जाता है। फैसलाबाद डिवीज़न ज़िला फैसलाबाद के साथ साथ ज़िला झंग और ज़िला टोबा टेक सिंह पर मुहित है। कमिश्नर ऑफिस की इस इमारत में दीगर महकमा जात के दफातर भी हैं। ये काबिल दीद इमारत शहर की अजमतों की अमीन भी है। ज़िला कचहरी की इमारत फैसलाबाद की कदीम हुस्न फ़न से मुज़य्यन इमारतों पर मुश्तमिल शहर के वस्त में वाक़ई है। कदीम तर्ज तामीर की ये इमारतें गुज़श्ता 88 बरस से ज़िले इंतज़ामिया और अदलिया के ज़ेर इस्तेमाल हैं। सन 1905 में ज़िला कचहरी की इन इमारतों की तामीर शुरू हुई। मिस्टर क्यू हेनरिक इस शहर के पहले डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर हुए। जनाब मोहम्मद हयात खान नून इस ज़िले के मुसलमान डिप्टी कमिश्नर सन 1928 में तैनात हुए। ज़िला भर से कसीर तादाद में लोग अपने कानूनी मामलात के सिलसिले में रोज़ाना यहाँ आते हैं। ख्वाजा गुलाम हुसैन, मेहर अब्दुल क़य्यूम, मेहर मोहम्मद सादिक, शेख मंजूर, शेख अब्दुल हफीज़ और चौधरी ज़फ़रुल्लाह शहर के मुमताज़ कानूनदान माने जाते थे।
قلعہ گفٹ اسکیم کی یہ قدیم تاریخی عمارت بھی ضلع کچہری کی حدود میں واقع ہے۔ ایس ایس پی اور دیگر پولیس افسران کے دفاتر بھی ضلع کچہری میں قائم ہیں۔ ڈی آئی جی فیصل آباد کا نو تعمیر شدہ دفتر بھی کچہری کے قریب واقع ہے۔ فیصل آباد شہر میں آنے اور جانے کے لیے جدید اور تیز تر ذرائع آمد و رفت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ شہر پنجاب کے وسطی علاقے میں واقع ہونے اور اپنی تجارتی اہمیت کے پیش نظر پاکستان کے دوسرے شہروں میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ سڑکوں کا جال شہر کو خوبصورتی سے اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہے۔ روزانہ ہزاروں لوگ معمولات روزگار اور تجارت کی غرض سے سڑک، ریل اور ہوائی جہاز کے ذریعے اس شہر تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ انہی ذرائع آمد و رفت کی بدولت فیصل آباد آج کپڑے اور دھاگے کی برآمد کے حوالے سے بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکا ہے۔ ان سہولیات کی تفصیل کچھ شہر کے مختلف مقامات سے سبک رفتار اور آرام دہ ویگن سروس بھی پاکستان کے تمام شہروں کے لیے دستیاب رہتی ہے۔ فیصل آباد ریل کے ذریعے بھی پاکستان کے اہم شہروں سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہے۔ کراچی، پشاور، لاہور، ملتان، راولپنڈی، بہاولپور اور دیگر اہم شہروں تک ریل کے ذریعے محفوظ اور آرام دہ سفر کی سہولتیں میسر ہیں۔ روزانہ 20 کے قریب ریل گاڑیاں اس اسٹیشن سے ہزاروں مسافروں کو اپنی منزل مقصود تک لے جاتی ہیں۔ سن 1898 میں اس ریلوے اسٹیشن کی تعمیر ہوئی، جہاں سے صرف وزیر آباد تک ریل کی سہولت مہیا کی گئی۔
ریلوے اسٹیشن کی موجودہ عمارت میں بکنگ آفس، تحفظ نشست اور معلومات کے دفاتر کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے 4 پلیٹ فارم موجود ہیں۔ شہر سے 12 کلومیٹر چھنگ روڈ پر فیصل آباد کا نو تعمیر شدہ ایئرپورٹ ہے۔ یہاں سے کراچی اور اسلام آباد کے لیے ہوائی سفر کی سہولتیں میسر ہیں۔ اندرون ملک اور بیرون ملک سفر کے لیے شہر کی کاروباری اور اہم شخصیات اس سہولت سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ قومی ایئر لائن کے علاوہ نجی فضائی کمپنی بھی فضائی سفر کی سہولت مہیا کر رہی ہے۔ فیصل آباد کو آئینہ ثقافت میں دیکھا جائے تو اس کے ہزار ہر رنگ دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ عوامی شعور کی تربیت اور رفتار حیات سے آگہی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سائنسی ترقی، صنعتی اور تعلیمی پیش قدمی اور کھیلوں کے بارے میں معلومات ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے ہی عام آدمی تک پہنچائی جا سکتی ہیں۔ انہی ذرائع ابلاغ کی بدولت یہاں کا ہر شہری بین الاقوامی برادری کا فرد بن چکا ہے اور دنیا کی تیز رفتار کارواں کا ایک حصہ ہے۔ خلیق قریشی، ناصر سیفی، ریاست علی آزاد، شاہ محمد عزیز اور سید محمد وکیل جیلانی کی خدمات مقامی اور قومی صحافت کے حوالے سے ناقابل فراموش ہیں۔ علم و فن کے فروغ کے ثقافتی ادارے بھی اس شہر کی رونق کو دوبالا کر رہے ہیں۔ آئیے مقامی اخبارات اور ثقافتی اداروں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں روزانہ 15 کے قریب مقامی اخبارات شائع ہوتے ہیں، جن میں مقامی، ادبی اور سماجی سرگرمیوں کی خبریں کثرت سے شائع ہوتی ہیں۔ روزنامہ عوام، روزنامہ سعادت، ڈیلی بزنس رپورٹ، روزنامہ ملت، روزنامہ پیغام، روزنامہ غریب، روزنامہ النقیب، روزنامہ ایام، روزنامہ تجارتی رہبر، روزنامہ نصیر، روزنامہ پنجاب نیوز، روزنامہ شہکاز اور روزنامہ صورتحال کے علاوہ بے شمار روزنامے، ہفت روزہ اور ماہانہ جرائد اس شہر سے اشاعت پذیر ہیں۔ روزنامہ سعادت شہر کا اولین روزنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ فیصل آباد کی صحافتی تاریخ جناب خلیق قریشی، جناب ریاست علی آزاد، جناب ناصر سیفی، جناب شاہ محمد عزیز،
جناب سردار عبدالعلیم، جناب سید محمد وکیل جیلانی، جناب پرویز پاشا، مولانا غلام رسول چنڈیالوی اور جناب ارشاد الحق حکیم شفائی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ روزنامہ عوام کے خلیق قریشی، غریب کے ریاست علی آزاد، سعادت کے ناسخ سیفی اور ڈیلی بزنس رپورٹ کے شاہ محمد عزیز کو فیصل آباد کی صحافت کے 4 ستون قرار دیا جاتا ہے۔ یہ چاروں احباب بڑے قریبی اور گہرے دوست بھی تھے۔ قومی اخبارات، جنگ، پاکستان، نوائے وقت، خبریں، مشرق، ڈان، دی نیوز اور پاکستان ٹائمز بھی شہر میں پڑھے جاتے ہیں۔ شہباز احمد، احمد کمال نظامی، منیر عمران، حافظ اکرام اختر، اعجاز حشمت خان، شمس الاسلام ناز، سردار محمد اختر، آغا ارباب خابر، ساجد علیم، خالد محمود، محمد زمان خان، مقبول لودھی۔ قومی اور مقامی اخبارات کے حوالے سے شہر کے معتبر نام ہیں۔ عرفان چغتائی، جمیل اطہر، نذیر ناجی، ادیب جاویدانی جیسے کہنہ مشق صحافی اپنی صحافتی زندگی کی ابتدا اسی شہر سے کرتے ہیں۔ آپ نے مقامی صحافت کا ذکر کیا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں صحافت اہم ترین کردار ادا کرتی ہے، اور مقامی صحافت تو میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے کہ وہ زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اگر مقامی صحافت مثبت راستوں پر چل نکلے اور ذاتی منفعت کی بجائے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے تو اس کے بہت ہی بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ لائل پور میں بھی صحافت نے اہم کردار ادا کیا، لیکن میرے خیال میں باوجود لاہور کی قربت شاید اس کی وجہ ہو کہ فیصل آباد کی صحافت اتنی صحت مند اور توانا نہیں ہو سکتی۔ بلکہ مجھے والد مرحوم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ لاہور کی قربت کو وہ ان معنوں میں کہا کرتے تھے کہ یہ بڑھ کے درختوں کے گھنے سائے خدایا، اس چھاؤں میں بھولے سے نہ کوئی آئے خدایا۔ لاہور کی قربت کے فوائد بھی بہت ہیں، لیکن اس برگد کے تلے کوئی اور کومپل پھوٹ بھی نہیں سکتی۔ بہرحال اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر فیصل آباد کے صحافیوں نے بہت اہم کردار ادا کیے ہیں۔ تحریک پاکستان سے لے کر استحکام پاکستان تک صحافیوں نے اپنی ذاتی جہد، اپنی ذاتی سطح پر بہت اہم کام کیے ہیں، جن میں جناب چودھری شاہ محمد عزیز، جناب چودھری ریاست علی آزاد، الحاج ناسخ سیفی، جناب خلیق قریشی مرحوم، سید محمد وکیل جیلانی، غلام رسول جنڈیالوی، یہ ایسے نام ہیں جنہیں فیصل آباد کے شہری کبھی بھول نہیں سکیں، اس لیے کہ یہ لوگ متحرک لوگ تھے، فعال لوگ تھے، ہر کام کو آگے بڑھ کر لیتے تھے اور اس کام کو انتہا تک پہنچاتے تھے۔ ریڈیو پاکستان فیصل آباد کا افتتاح 15 ستمبر سن
1982 बरोज़ बुध को हुआ। शहर की अदबी और सकाफ़ती पेशरफ्त और तरवीज में रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद का किरदार बहुत अहम है। 10 किलोवाट ट्रांसमीटर का ये रेडियो स्टेशन बच्चों के प्रोग्राम, मज़ाकरों और दीगर अदबी प्रोग्रामों के साथ साथ मालूमाती और तफरीही प्रोग्रामों के ज़रिए शहर भर के सामीन के ज़ौक़ की तस्कीन का सामान फराहम करता है। आबिद बुखारी, मोहम्मद शफी, शिराज असलम मियाँ, एजाज वकार, नज़ाकत शकीला, राना मोहम्मद अकरम, जावेद अख्तर और नैयर जमाल जैसे कोहना मश्क प्रोड्यूसर्स की मेहनत और लगन से फैसलाबाद रेडियो की नशरियात आवाम में मकबूलियत हासिल कर चुकी हैं। इस कामयाबी में इस रेडियो के मारूफ सदाकारों में ज़काउद्दीन आसिफ, ज़ाहिदा नुसरत, तस्लीम कौसर, फ़िदा हुसैन गिलानी, मुशब्बर अली ख़ान, निगार सरफराज, हामिद रज़ा हाशमी, जाहिद सरफराज, लईक अहमद, फौजिया हाशमी, तस्लीम मख्तर, शाहिदा ख़ान, अनीसा यूनुस, खालिद फ़ारूकी, खालिद महमूद, ज़हरा इस्लाम, शगुफ्ता शीरी, नाइला नदीम, मोहम्मद इलियास, महनाज सरवर, अनीला खालिद, इरफाना कुंवर, हाशिम जाफरी, रुबीना कौसर, रुबीना शाहीन, शफिया नकी और मोहम्मद अफजल जोशो की काविशों का भी बहुत दखल है। जिस इलाके में रेडियो आता है, रेडियो एक इनकलाब समाजी सकाफ़ती पैदा करता है। चुनाचे यहाँ के लोगों ने भी ये महसूस किया कि यहाँ रेडियो स्टेशन कायम होना चाहिए और पुरज़ोर इसरार पर, और यहाँ के नुमाइंदों और मुअज़्ज़िज़ीन ने और यहाँ के समाजी कारकुनों ने, सब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई। चुनाचे हुकूमत ने 15 सितंबर 1982 को रेडियो यहाँ कायम किया। तो मुझे ये बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद ने यहाँ की समाजी ज़िंदगी को भी, अदबी ज़िंदगी को भी, सकाफ़ती ज़िंदगी को भी, मुआशरती ज़िंदगी को मुतहर्रिक किया। और यहाँ रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद के क़याम से अदबी तंजीमों फ़ाल हुई और यहाँ मुशायरों का जिस तरह अदबी एक रंग होता है, उनकी माहाना और हफ्त रोज़ा इजलास शुरू हुए। और यहाँ एक काम जो रेडियो बहुत करता है वो ये कि यहाँ का जो टैलेंट होता है, फ़नकार जो होते हैं, उनको आगे लाता है, उनकी हौसला अफजाई करता है। चुनाचे रेडियो पाकिस्तान ने ये भी काम बड़े ऐसे तरीके से किया और अभी यानी 10 साल हुए हैं। और इस 10 साल की मुद्दत में बहुत थोड़ी मुद्दत होती है, लेकिन रेडियो फैसलाबाद अगर 2-1 जुमलों में मैं कहूँ वो ये है कि जब रेडियो फैसलाबाद की नशरियात होती हैं तो यहाँ के अवाम सामीन कोई और रेडियो नहीं सुनते। ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर माशरती ज़िंदगी में हमने बहुत से काम किए। रेडियो मेला एक बहुत अहम हमारा प्रोग्राम है जो हम देहातों में जा करते हैं कि वो लोग जो रेडियो के स्टूडियोज़ तक नहीं पहुँच पाते, प्लेटफॉर्म पे नहीं उन तक रेडियो पहुँचता है, उनके मसाइल को जानता है, उनके मसाइल की हल की कोशिश करता है, उसमें मुमिद और मुआविन साबित होता है। और साथ साथ ये कि वहाँ के फ़नकारों को भी शिरकत का मौका मिलता है इस तरह से। इसी तरह हमारे सिटी सर्विस प्रोग्राम है, नवीद सार है, रावीत चना है। रावीत चना एक ऐसा मकबूल प्रोग्राम है जो हमारे रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद की पहचान है। नवीद सहर, रावीत चना, सांदल धरती, मेहनत विच अजमत, अज़्मे नौ, आंचल, अलहुदा, दबिस्तान और स्पोर्ट्स मैगज़ीन फैसलाबाद रेडियो के मकबूल प्रोग्राम हैं। शोबा न्यूज़ के लिए शौकत निसार सलीमी और तारिक चौधरी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं।
पंजाबी प्रोग्राम रावीते चना के हर दिल अजीज कंपेयर जनाब ज़काउद्दीन आसिफ से आपकी मुलाकात। अपनी दिलकश आवाज़ और ख़ूबसूरत पंजाबी लहजे की बदौलत रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद को अवाम ख़वास में मकबूल बनाने के लिए जिस शख्सियत ने सबसे नुमाया हिस्सा लिया उसका नाम ज़काउद्दीन आसिफ है। ज़काउद्दीन आसिफ का बुनियादी ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया और चौधरी निज़ामुद्दीन जैसे अजीम फ़नकार और सदाकार के साथ काम करने का मौका मिला। ज़काउद्दीन आसिफ जब से रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद कायम हुआ है यहीं खिदमत अंजाम दे रहे हैं और रेडियो के वसातत से आप उनकी आवाज़ सुनते ही रहते हैं। आइए आज आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। ज़का साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ज़का साहब आप अपने इब्तदाई फ़नी सफ़र के हवाले से कुछ बताएं हमें। काजी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका ममनून हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत बातें मेरे मुतल्लिक़ कही हैं जिनका कि मेरा ख़्याल है कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। बहरहाल ये आपकी बहुत मेहरबानी है। मैंने जी 1 सितंबर 1972 से रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया और मैं बहैसियत न्यूज़ रीडर गया था जी, उर्दू और पंजाबी ख़बरें पढ़ने के लिए। उन्होंने मेरा ऑडिशन किया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी आप कुछ इनको ट्रेनिंग दें, CNO सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने। तो फिर लाहौर में मेरी ट्रेनिंग की गई, लेकिन उस वक्त हमारे एक सीनियर प्रोड्यूसर होते थे, वो वफ़ात पा गए हैं, सईद रशीद हबीबी। उन्होंने देखा कि मैं न्यूज़ की बजाय कंपेयरिंग अच्छी करता हूँ, तो उन्होंने मुझे कंपेयरिंग की तरफ राग़िब किया। और फिर जैसा कि अभी आपने फरमाया कि बर्रे सग़ीर के बल्कि एशिया के अजीम ब्रॉडकास्टर जो बहुत अच्छे इंसान भी थे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने मेरी ट्रेनिंग की और मुझे फ़ख्र है कि मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा है। 1 सितंबर 1972 पहले दिन मैं रेडियो पर आया था। फैसलाबाद तशरीफ़ लाए तो यहाँ किस किस्म के प्रोग्राम से अपने इस फ़नी सफ़र का आगाज़ किया आपने? यहाँ पर कादरी साहब एक प्रोग्राम शुरू हुआ था पहले तो, यानी 1 सितंबर 15 सितंबर 16 सितंबर से वो शुरू हुआ। 15 सितंबर से रेडियो शुरू हुआ। 16 सितंबर को वो प्रोग्राम से ज़राती प्रोग्राम वो मैंने कोई तकरीबन 3 माह किया। फिर 1 दिसंबर 1972 को मादर चाहता हूँ 1 दिसंबर 1982 को प्रोग्राम रावीते चना शुरू किया। हमारे स्टेशन डायरेक्टर अकरम चौधरी साहब ने फ़ैसला किया और प्रोड्यूसर मोहम्मद शफ़ी साहब, एजाज वक़ार साहब ने, यही थे उस वक्त यहाँ। तो रावीते चना प्रोग्राम शुरू हुआ। वो प्रोग्राम मैंने, पहला प्रोग्राम ज़राती प्रोग्राम था, दूसरा प्रोग्राम वो था रावीते चना जो अब तक चल रहा है। आपकी वजह से रावीते चना और सांदल बार के मकबूल तरीन प्रोग्रामों में ये शुमार होता है, तो आप क्या महसूस करते हैं? काजी साहब, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है कि प्रोग्राम मेरी वजह से मकबूल है। प्रोग्राम तो आप मेहरबान भाइयों की वजह से, बहनों की वजह से, सुनने वालों की वजह से मकबूल है कि उसमें जो गुफ्तगू होती है उसको पसंद करते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि जब मैं कोई बात करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको इतनी सादा बात की जाए, हर बच्चा ये महसूस करे कि ये मेरी बात है, हर घर महसूस करे कि ये हमारे घर की बात है। और कुछ आपको मालूम है कि मैं फैसलाबाद का, जैसे आपने फरमाया, यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ के हालात का पता है। और जब मैं प्रोग्राम करता हूँ या प्रोग्राम के बाद बड़ा अच्छा महसूस होता है। इस शहर के रहने वालों के लिए, इस शहर के इंतज़ामिया के लिए, इस शहर के मेयर और दीगर मुंतखब अरकान के लिए कोई पैगाम जो आप देना चाहें? मेरा तो जी यही है पैगाम, तुहानू पता कि बड़े लोगों का हुंदा, मैं तो एक बड़ा छोटा जिहा बंदा है। सिर्फ यही अर्ज़ करांगा कि अपनी धरती दे नाल प्यार करो। ये धरती जिहड़ी है, ये धरती है तो असीं हां, ये धरती है तो आसिफ, ये धरती है तो फैसलाबाद, ये धरती है तो लाहौर, ये धरती है तो कराची है। मतलब ये है कि सानू सिर्फ इस धरती दे नाल साडी पछाण। मैं बाहर जाना, तुसीं बाहर जाओगे, कोई नहीं कहेगा कादरी साहब आए ने, आसिफ आया या अशफाक साहब आए ने, हर बंदा कहेगा कि कौन है पाकिस्तान चों आया, ये कौन है पाकिस्तानी है। अपनी धरती नाल असीं प्यार करना सीख जाइए। मेरा ख्याल है कादरी साहब इस तो बड़े होर कोई गल नहीं। इस धरती की मिट्टी नूं अपनी अखां दा सुरमा बना लईए। और ये धरती है जिहड़ी बड़ियां कुर्बानियां तो बाद हासिल की है। अगर मैं नहीं तो तुसीं नहीं, लेकिन साडे बजुर्गां ने तो हासिल की है। ये सिर्फ समझ लेना कि इस धरती दे नाल ही प्यार करांगे तो सब कुछ मिलेगा। क्योंकि जिको उस्ताद इश्क लहर कहते हैं कि बाग लाया सी प्यारे प्यार वाला, खरे किस जालम छा माननी है, तेरे हिजर दी यार भी चार लैके असा जिगर बना लिया छाननी है, कदर वंद होंदो तो पैर पींदो तू बे कदरे आ कदर की जाननी है, इश्क लहर ना हुसन ते मान करिए दिन चार दिहाड़े दी छाननी। फैसलाबाद में लाहौर सेंटर के प्रोग्रामों को
बूस्टर के जरिए नष्ट किया जाता है। मिल्लत रोड पर पाकिस्तान टेलीविज़न और प्राइवेट चैनल STN के बूस्टर स्टेशन कायम हैं। टीवी का कमर्शियल ऑफिस भी फैसलाबाद में काम कर रहा है। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी शहर की कदीम तरीन लाइब्रेरी है जो ज़िला कचहरी के करीब वाक़ है। सन 1911 में करोनेशन लाइब्रेरी के नाम से इसका क़याम अमल में आया। साइंस, अदब, मुतालिया पाकिस्तान, मुआशियात, मेडिकल और इस्लामी मौज़ूआत पर तकरीबन 26,000 किताबें इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग इस लाइब्रेरी से इल्म की प्यास बुझाते हैं। सन 1987 में इस तारीख़ी लाइब्रेरी में जदीद सहूलतों से आरास्ता ये हिस्सा तामीर किया गया। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी शहर की यादगार तारीख़ी इमारतों में से एक है।